रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राजस्थान में रेल अवसंरचना के समग्र विकास के लिए वर्ष 2025-26 में 9,960 करोड़ रुपए आवंटित करने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि रेलवे बजट में आधुनिकीकरण, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिससे यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार प्रदेश में यातायात एवं परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। Now we are adding 2.5 lakh crore investment. So the projects are coming up in a very one by one. The projects are coming up, and as they come up, the bottlenecks get removed, and then we can add more. So will you be taking a call on the 3 new DFCs this financial year? Now we have taken that corridor, as you are aware, where we have taken all the origin points and all the destination points. Right? All the origin points, all the destination points, as we know today, have been put on the PM Gati master plan. There are some places where you require addition of only one line for a few kilometers. There are some places where you need to have third and fourth line. There are places where you need to do completely new line. There are places where you need to do ROR, rail flyover. Right? So multiple interventions are being done so that the entire network becomes more efficient. So that adds more than what we really would have got if we do a separate corridor. And that is scientific, because network effects. In network theory, there is a formula which is e to the power minus lambda t. Right? So if there is a small inefficiency in a network, it can lead to significant capacity reduction. So I'll give you one example. Suppose there is a 6-lane highway. Or you take the example of, let's say, Delhi-Gurgaon. You'll be very familiar with Delhi-Gurgaon. 4 lanes on this side, 4 lanes on that side, 8 lanes. Even if it is a 4-lane highway, one lane, if there is a car which has got damaged and that has a stop, you'll find that almost 1.5 kilometers behind it, there is a congestion. You have seen that, observed that? Right? That is because the network theory has that exponential factor in it, and this is common across all networks. Railway network, highway network, transmission network, telephone network. In your telecom network, if there is one router, there are 15 routers. Out of that, one router gets damaged. Suddenly you will find call quantity getting down. Network theory is very interesting. You read that a little bit on like whichever way, or I can discuss offline also. So that's why we are focused on improving the network. You remember Dr. Sridharan? He used to say that instead of having a separate corridor approach, focus more on developing the entire network. He used to say that. So, sir, where does that leave DFCC at this point? It will primarily be an operating agency for the 2 corridors that will be there? Yeah, they are operating it. And they are also integrating it with the key. There are multiple places where cargo originates. So at 15 new places, they are integrating with the existing. Right. Otherwise, for many places, they didn't have an integration. You see the network impact. That is the way we need to very meticulously. Networks like railway network and highway networks and telecom networks, they have to be planned in a very scientific way. Very, very scientific. So just wanted to check, what is the timeline for the upgradation of the New Delhi railway station project? अभी काम चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है. आप जाके देख के आना. बीच में ट्री वाला इश्यू आया था, which I requested Bhupender Yadav ji, and I thank him for solving it to a great extent. बाकी तो High Court, Supreme Court also have their say in the Delhi matters. So जब complete होगा, तो फिर काम को कोई तकलीफ नहीं. बहुत अच्छा है. हो गया complete. We'll go to the remote locations. Remote locations, virtual locations. We start with Northern Railway. बाकी लोग प्लीज. नमस्कार सर, मैं हिमांशु, सीकर नॉर्दर्न रेलवे। सर
मिस्टर दीपक बहल दैनिक जागरण अम्बाला और श्री विवेक तिवारी दैनिक जागरण डिजिटल, इनका एक प्रश्न था कि अभी बजट में 200 वंदे भारत ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की गई है, इसमें स्लीपर वंदे भारत का शेयर क्या होगा और स्लीपर वंदे भारत चलाने में किन रूट्स या किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, स्लीपर वंदे भारत में ऑलरेडी 200 पहले से अप्रूव है और भी नई आएंगी और हम लोग वेट कर रहे थे कि पहली वंदे भारत का टेस्टिंग ट्रायल पूरा ढंग से हो जाए। वो कंप्लीट हो गया, जैसा मैंने बताया आपको पहले। तो अब तेजी से उसका डिप्लॉयमेंट चालू होगा। रूट का आपके पास सूचना बहुत जल्दी आ जाएगी जैसे ही रूट फाइनल डिसाइड हो। थैंक यू। दूसरे लोकेशन में फिरोजपुर में महावीर चंद्र आज प्रकाश से चंडीगढ़ से मंत्री जो वर्ल्ड क्लास कार्य स्टेशन, हाँ जी, जो चंडीगढ़ में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनने जा रहा है, कब तक पूरा होने की उम्मीद है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई जो बड़े स्टेशन हैं चंडीगढ़ के साइज के, जैसे स्टुटगार्ट हो गया वगैरह वगैरह, दुनिया के कई स्टेशन, जनरली स्टेशन रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम 12, 15, 10 साल का होता है। अपने यहाँ काम बहुत तेजी से चल रहा है, आपने जाके देखना चाहिए। देखा आपने हाल ही में? हाँ जी, देखा, काफी काम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बहुत फास्ट चल रहा है चंडीगढ़ का। और चंडीगढ़ के डिजाइन में एक और खासियत है, चंडीगढ़ का स्टेशन मॉड्यूलर डिजाइन है। इसमें बहुत सारी चीजें फैक्ट्री से बन के आ रही है, प्री फैब्रिकेटेड है चीजें। हेलो सर, रोहित अगले लोकेशन सर, रोहित बंसल जी मीडिया। पंजाब ने सर 3 डिमांड रेज की थी बजट के अंदर। पहली डिमांड थी कि अमृतसर से चंडीगढ़, अमृतसर से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन। दूसरी थी बठिंडा से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन। तीसरी सर जो सबसे बड़ी डिमांड पिछले लंबे समय से पंजाब के अंदर है कि पंजाब के 23 में से तकरीबन 12 जिले ऐसे हैं जिनका राजधानी चंडीगढ़ के साथ संपर्क है और इसके लिए केवल राजपुरा से लेकर चंडीगढ़ तक 50-60 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक की मांग है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। उसके लिए कब तक पूरा किया जाएगा राजपुरा टू चंडीगढ़ रेलवे लाइन? सारे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स का डिटेल आपको डीआरएम साहब देंगे वहां पे। अभी पूरे बजट की अगर आप बात करें इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में डीआरएम साहब की बात करें। मंत्री जी, मैं चंडीगढ़ से ही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन दो यार, मुझे सारे स्टेट कवर कर। एक ही क्वेश्चन है, आपने इसको कंप्लीट नहीं किया, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। जैन साहब ने पूछा था आपसे, आपने डेडलाइन दी थी चंडीगढ़ की वर्ल्ड क्लास की। अभी बिट्टू जी आए थे चंडीगढ़ में, तो मैंने आपको बताया ना, बाकी दुनिया में तो हमने देखा आप एक बार जरूर जाते हैं। और कालका शिमला में आपने हाइब्रिड ट्रेन चलानी थी, उसका क्या स्टेटस है सर? कालका शिमला हाइब्रिड हाइड्रोजन ट्रेन तैयार हो रही है। चलिए अगला लोकेशन आइए। अगला लोकेशन हाइड्रोजन ट्रेन का था ना सर? फिरोजपुर चलिए बीकानेर। नमस्कार सर। नमस्कार रश्मि जी, मैं उत्तराखंड से ट्रांसपोर्टेशन को संतोष शर्मा। You might be knowing that the state is dividing in parts of. क्या भाई रेलवे का अधिकारी प्रश्न लेके बोलो, क्योंकि साफ सुनाई देता नहीं ढंग से। रेलवे के अधिकारी प्रश्न लेते समझे को बहुत अच्छा नहीं से बताओ, क्लियर बताओ। सारे स्टेट्स लेने हैं, बहुत सारे स्टेट्स कवर करना है। कोई डिटेल में चर्चा डीआरएम साहब, सीएम साहब आप कर लो। My question is, do you have any plan for Kumaon region to expansion of the tracks on the line of Manaskan? And my second question is for Garbhad region. Do you have any plan to expand the track from Dehradun to Mussoorie, which was a project during the British Raj but abandoned? If there are some इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स मत पूछो दोस्त, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स आपको सीएम साहब बताएंगे। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स सीएम साहब बताएंगे। आगे चलो नेक्स्ट। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। जो बजट आया है केंद्रीय बजट, इसमें राजस्थान को 9,960 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ है
पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जैसे पिछले साल एक बड़ा अलॉटमेंट था, इस साल उससे भी बड़ा अलॉटमेंट है। इसको अगर हम आम भाषा में बोलें तो जिस प्रकार से विकास के कार्य पिछले वर्ष स्वीकृत हुए थे और चलने शुरू हुए थे, वो जो चलते हुए कार्य हैं वो और तेज़ी से चलेंगे, और जो वर्क्स अभी स्वीकृत होने की स्थिति में हैं और प्रस्तावित हैं, रेलवे बोर्ड को भेजे गए हैं, वो वर्क सैंक्शन होंगे। राजस्थान जैसे राज्य के लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एक अहम उपलब्धि है बोलूँगा, जो कि केंद्र सरकार ने दी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से। और यहाँ पे पहले मीटर गेज थी, फिर ब्रॉड गेज हुई, फिर डबल लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे अभी जो रेल लाइनों के विकास का दौर है वो अभी कुछ समय चलना है, और जिससे कि जो कनेक्टिविटी है, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो मिनरल रिच इलाके हैं, उनको भी हम लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर पाएँ। और जो यहाँ के जो एस्पिरेशंस हैं लोगों के, यात्रियों के एस्पिरेशंस हैं, जो यहाँ व्यापारियों के एस्पिरेशंस हैं, सस्ता माल भाड़ा हम उनको अफोर्ड कर पाएँ उनको। और आप ये भी जानते होंगे कि राजस्थान से ही जो हमारा वेस्टर्न DFC है वो गुजरता है। कई सारे उसके फीडर रूट्स हैं जो कि NWR के साथ कनेक्टेड हैं, और वेस्टर्न DFC पे हम लोग डबल स्टैक कंटेनर की जो 2 लेवल की लोडिंग वाली गाड़ियाँ हैं उनको हम लोग चला पाते हैं, जिसमें कि जो भाड़ा है, माल भाड़ा है, वो कम है और बिजनेस के लिए एक वो फेवरेबल चिन्ह है। सर, बात की जाए बजट के अलावा राजस्थान NWR की, तो जो नए स्टेशंस के जो जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है, लगभग कितने ऐसे स्टेशन है जिनके डेवलपमेंट का काम 2025 के मिड तक पूरा हो जाएगा, 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, राजस्थान में कुल मिला के 85 स्टेशन हैं जिन पे कि रिडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, और इनको हम मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं। एक वो स्टेशन जहाँ पे कि मिडिल लेवल का रिडेवलपमेंट चल रहा है, जिसमें स्टेशन बिल्डिंग है, प्लेटफॉर्म की सरफेसेस हैं, प्लेटफॉर्म शेल्टर हैं, फुट ओवर ब्रिजेस हैं, इनके पे काम चल रहा है। और कुछ स्टेशन ऐसे हैं जो कि लगभग 10 के आसपास स्टेशन हैं जहाँ पे मेजर रिडेवलपमेंट चल रहा है, जो कि बहुत बड़े स्तर पे कार्य हो रहा है। लोकल संस्कृति विरासत को ध्यान में रखते हुए नई बिल्डिंग्स, बड़ी बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बन रही हैं, रूफ प्लाजा बन रहा है, सर्कुलेटिंग एरिया, बेसमेंट पार्किंग, ये सारे जो बड़े बड़े कार्य हैं ये उन स्टेशंस पे हो रहे हैं। इसमें से जो स्टेशंस पे मिडिल लेवल का रिडेवलपमेंट चल रहा है उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक काफ़ी बड़ी संख्या में इन स्टेशंस को हम लोग जून 2025 तक कंप्लीट करें। इसका संख्या तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे ये डबल डिजिट में फिगर होगी, जो कि जिनको कि हम स्टेशंस को जून 2025 तक कंप्लीट करेंगे। और निश्चित तौर पे इस वित्तीय वर्ष में, जो भी आने वाला वित्तीय वर्ष है 2025-26 जिसके लिए बजट आया है, इसमें ये सारे जो रिडेवलपमेंट के कार्य हैं, मेजर वाले नहीं, जो बाकी हैं, इनको सभी स्टेशन पे पूरा कर लिया जाएगा। FOB को लेके आप भी इस बात को समझोगे कि FOB को बनाना और उसको लॉन्च करना, उसके गर्डर को रनिंग लाइंस के ऊपर से लॉन्च करना और बाद में उस स्लैब को कास्ट करना, ये सब करना एक बड़ा कार्य है। इसके लिए जो रेल यातायात है वो भी प्रभावित होता है, तो इसके लिए ब्लॉक लेना, स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाना, ये सारी चीज़ें भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। जो मेजर डेवलपमेंट वाले स्टेशन हैं उनमें से जैसलमेर हमारा लगभग पूरा का पूरा हो चुका है तैयार, बस अब फिनिशिंग उसमें चल रही है, फाइनल फिनिशिंग। गांधीनगर जयपुर भी काफ़ी आगे है, और हम लोगों का प्रयास है कि हम इन 2 स्टेशंस को कम से कम जैसलमेर को तो अवश्य ही हम जून 25 तक करें, और अगर संभव हो सके तो हम लोग गांधीनगर को भी करने की कोशिश करेंगे पूरी।